अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फैजान फ्रॉम डिजिटल लीडर्स एकेडमी। आज हमारे साथ हैं हारिस अंसारी फ्रॉम दुबई। हारिस, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हमें। Thank you, Faizan. Thank you for having me. So मैं अपना brief introduction करवा देता हूँ एक. Right now I am working in Hala as the digital marketing executive. Hala is basically a joint venture between Careem and Dubai government. तो जितने भी दुबई की टैक्सीज होती हैं, they are available on the Careem application. If you talk about my previous experiences, I was leading digital marketing at Bike Technologies. Bike, ओके। you guys must be aware of. It's a बिल्कुल। bike ride hailing company in Pakistan. Even before that, I was running my own startup, which was a food for fitness startup in Pakistan. So yeah, that's what my journey is. ओके, सो हारिस, एज आई नो कि तुम डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर हो, सो थोड़ा मुझे बताओगे कि यार तुम इस इंडस्ट्री में आए कैसे? So फैजान, मेरा इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन यूनिवर्सिटी के टाइम से ही था. बैक देन आई रियलाइज, जब मैं लास्ट के अंदर पढ़ रहा था तो आई टुक अ कोर्स जो कि न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज का था, एंड देयर आई रियलाइज कि डिजिटल मार्केटिंग जो है इट्स गोइंग टू बी बिग, एंड it is it's back then in 2015, और आज मैं कहता हूँ it is big. So इतने कम अरसे के अंदर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का स्पैन जो है बड़ा हुआ है. When I graduated, so मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, as I told you, which was food for fitness startup. उसके अंदर I realized because digital marketing was the major sales channel for us. Then I realized that halls on it. I started to take webinars on it. Self-learning start करी, learning by doing start करी, करता था, implement करता था, फिर देखता था, research करता था, फिर implement करता था. So eventually, in Paikia, I got the opportunity to lead digital marketing given my prior experiences. Paikia के अंदर basically that was the tipping point for Paikia. उस वक्त Paikia grow कर रही थी, and digital marketing was their main lever for the growth. Okay. तो उधर बहुत amazing learning हुई है मेरी उधर. That is one of the proudest moment as well, क्योंकि digital marketing was on the driving seat for the growth. So yeah, then eventually I got the opportunity in Dubai, in Hala. And I must say that I'm thankful to God that I'm in the correct place with the correct talent in the correct time. Okay, great. Okay, Haris, I want to know कि यार what challenges did you face in starting? So Faizan, when I started, as I told you, I was doing self-learning, और उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आता था वो ये था कि इंफॉर्मेशन कहीं भी कंसोलिडेटेड नहीं, कहीं भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी चीजें नहीं पता चलती. Okay. आपको बेसिकली हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग कोर्सेज, अलग चैनल्स, अलग रिसर्च करनी पड़ती है. सो माय मेजर चैलेंज वाज दैट एक तो जो इंफॉर्मेशन थी वो कंसोलिडेटेड नहीं थी, और वो बहुत ही जेनेरिक इंफॉर्मेशन होती है व्हिच इज फॉर एवरीवन. हालांकि ऑन द अदर हैंड योर प्रॉब्लम्स आर very different from others. जो मैं कर रहा था that was somewhat different from others. जो startup की requirements होती है that was different. So उस चीज को understand करना एक थोड़ा सा difficult part था. And but eventually जब मैं कर रहा था ये, तो I figured out कि कौन सी information कहाँ से लेनी है, रिसर्च किस तरह से करनी है, और अपने आप को प्रोफेशनल से किस तरह से कनेक्टेड रखना है ताकि आप कोई भी चैलेंजेस से डील कर सकें. So that's what I did, और challenges थे, but I overcome it. चलो ग्रेट. आई थिंक जो मेन चीज़ मुझे आपसे अच्छी लगी कि नेटवर्किंग का आपने जिक्र किया, कि जो आपने नेटवर्किंग अपनी स्ट्रॉन्ग की और उनसे आपने फिर लर्निंग की इसके अंदर. ओके, that is very important. That is very important. Like क्योंकि जो बंदा, you cannot learn everything through a course or everything online.
आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए ही होता है। जो बंदा इंडस्ट्री के अंदर 7-8 साल से काम कर रहा है, उसने डिफरेंट कैंपेन्स रन की हुई है, डिफरेंट सिनेरियोज देखे हुए हैं, उसे टाइम का पता है कि कौन सा टाइम बेहतर है, कौन से चैनल्स बेहतर है, तो his advices are the best one out there. Okay, so Haris, what are your best achievements so far? As I told you, working with Bike Technologies and leading their digital marketing and leading their growth actually, I would say was the biggest achievement क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने बाइकिया को बहुत ज़्यादा ग्रो करा है। अगर आप recent times के अंदर देखें तो बाइकिया is one of the prominent brand in Pakistan now. तो मैंने वो पूरी बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी है और किस तरह से डिजिटल मीडियम ने उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हेल्प की है। आई थिंक दैट इज रिमार्केबल टू टू मेक अ स्टार्टअप, टू कन्वर्ट अ स्टार्टअप इनटू अ कंपनी, दैट वाज रिमार्केबल। ओके, ग्रेट। हारिस, कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर आपका जो आप शेयर करना चाहें सबसे? एक्सपीरियंस अच्छे और बुरे कहीं भी हो सकते हैं। Okay. डिजिटल मार्केटिंग भी डिफरेंट नहीं है, सो बुरे एक्सपीरियंस होते हैं। कभी कभार जो है वो कुछ फ्रॉड देखने को मिलता है, बट द गुड पार्ट इज व्हाटएवर पूरे एक्सपीरियंसेस यू थिंक ऑफ, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर इट। लोगों ने उसके ऊपर काम किया हुआ है। अगर आप फ्रॉड की बात करें तो उसके लिए टूल्स होती हैं। अगर आप एट्रीब्यूशन की बात करें, सो आई थिंक एट्रीब्यूशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी चैलेंजिंग, एंड उसके अंदर बुरे एक्सपीरियंसेस तो नहीं, मतलब आई थिंक चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस फेस करने को मिलते हैं, बट देयर इज सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, फाइन। तो हारिस, मुझे बताएंगे कि न्यू कमर्स को तुम क्या कहना चाहते हो कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में उन्हें आए और वो इसमें काम सीखें, तो व्हाट्स योर एडवाइस फॉर देम? सो न्यू कमर्स के लिए न्यू कमर्स 3 तरह के हो सकता है। लाइक मेरी असम्पशन ये है कि 3 तरह के न्यू कमर्स हो सकते हैं। एक वो जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, एक वो जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं और फ्रीलांस के अंदर आना चाहता है, दूसरे वो जो अपना बेसिकली अपनी ऑक्यूपेशन चेंज करना चाहते हैं, अपना रोल चेंज करना चाहते हैं विद इन अ करियर जो कंपनी, अपना शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि अगर किसी करियर जो शिफ्ट करना फील्ड में चाहते हैं। है एग्जैक्टली। तो दे वांट टू जस्ट लाइक कि और दे वो आर ऑन सेल्स, सो सेल्स से हटके वो ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ आना चाह रहे हो, या कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग उसने की हुई है और वो चाह रहा है कि यार मैं ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ आऊँ, तो ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और गुड पार्ट इज एंड मोटिवेटिंग थिंग इज दैट वो कर सकते हैं। बेसिकली देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक एंड आपने बेसिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। तो जेनेरिक एडवाइस सबको यही होगी कि गेट टू नो द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड जंप इनटू इट। आप ज्यादा लर्निंग जो है वो और जो एडवांस लेवल लर्निंग होगी वो आपके कैंपेन्स चलाते हुए या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करते हुए ही होगी। So just get done with the basic, and that's exactly what I want to do with you as well. That I want to launch a basic course, जो basic of digital marketing का लोगों को आइडिया देते, प्रोस्पेक्ट का आइडिया देते, टूल्स कौन सा उस चीजों का आइडिया देते, एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते जो भी हमारे important basic tools हैं, and then after that course that person can become an expert in that. So करना शुरू करें basically. Execution is the, if you have make up the mind, then start implementing it. ओके, Or yeah, so that's exactly the advice to the freelancers and someone who wants to switch his career. फाइन। सो आई थिंक मेन बड़ी अच्छी बात आपने की कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं ज़िंदगी में, मगर उसको इम्प्लीमेंट करके नहीं, एक्सपीरियंस नहीं हम ले रहे होते हैं। ऑन हैंड एक्सपीरियंस होगा जब भी आई थिंक हम उसको बहुत अच्छी तरह से लेके चल सकते हैं आगे। और मेरा ये मानना है कि यार अगर चलो बैड एक्सपीरियंस भी होता है तो वो आपके लिए एक लर्निंग है, एक एक्सपीरियंस हो गया, आपको पता चल गया कि यार इस तरफ डायरेक्शन में नहीं जाना है, ये करके मुझे नुकसान हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम आई थिंक उसको आप नहीं करते हैं। और फैजान ये बहुत ही फास्ट इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। सो आपने जो है वो इफ यू आर नॉट इनटू द इंडस्ट्री, सो आप फिर मिस कर जाओगे। after year after 2 years you will not be like able to involve in that as much as like when you were in the initial days. So you need to get into it और अपने काम करना शुरू करना।
Okay, fine. Haris, as you know, COVID-19 affected the world badly, especially the business sector. So I want to know कि what's your advice for business owners जो small business चला रहे हैं, तो क्या advice आप उन्हें देना चाहेंगे? So सबसे like nobody knows कि इस स्टोरी का एंड क्या होगा, कोई क्लैरिटी नहीं है. तो हमें जितना कॉशियस हो सकते हैं होने की जरूरत है फॉर स्पेशली businesses and especially for the small businesses. सबसे important factor तो ये है कि and obviously everyone would have done that cut down their uh, extra cost basically जो expenses हैं जो कि important नहीं है. You need to realize that what is bringing good to the company, what is bringing revenue to the company, and you need to spend only over there. एक तो सबसे important बात ये कि आपको cost cutting करने की throughout जरूरत है. Extra cost जो है वो आप कोई bear नहीं कर रहा है. दूसरी बात ये कि this is one of the toughest times for the businesses. तो थोड़ा सा creative होने की जरूरत भी है और थोड़ा सा out of the box thinking की जरूरत भी है और businesses को additional revenue का सोचना चाहिए. How they can make extra dollar for their businesses. Okay. So yeah, that would be for the time being or for this period of time जब lockdown है, जब COVID-19 की situation है, लोग spend नहीं कर रहे हैं. So yeah. Okay. और हारिस मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ उसके अंदर कि इन पाकिस्तान हम क्या देख रहे हैं अभी, जो हमारी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है कि डिजिटाइजेशन की तरफ वो सबको बोल रही है कि जो भी अपने बिजनेस वगैरह चला रहे हैं उसको वो ऑनलाइन की तरफ लेके चले जाएं और उसको ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करें अपने प्रोडक्ट्स को. उसके बदले कि आप शॉप्स खोलें और मतलब कि जिसमें आपका इंटरेक्शन ह्यूमन से हो रहा हो तो वो थोड़ा दूर हो जाए और आप ऑनलाइन सेल को प्रमोट करें और उस तरफ ज़्यादा जाएं. 100%. So एक तो ये कि इस टाइम पीरियड में डिजिटल होने की जरूरत है and what people are basically assuming is that the world will be more digital than ever even after this pandemic situation. Okay. So the new normal will be digital basically. So लोग और ज़्यादा digital spending कर होंगे और ज़्यादा digital media के ऊपर involve होंगे, business digital हो रहे होंगे, currency digital हो रही होगी. So yeah. You're right, completely. Okay, Agree with you. Okay, great. और हारिस मैं ये जानना चाहूँगा कि उसके अलावा जो सैलरीड पर्सन है जो जॉब्स कर रहे हैं और बहुत से लोगों की तो जॉब आई थिंक निकाल दिया गया है उन्हें क्योंकि उनकी जॉब ऐसी थी कि जिसमें सेल्स करना होता था या मार्केट में जाना होता था और अभी बिल्कुल इस टाइप की एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं पाकिस्तान में, तो उनको जॉब से निकाल दिया गया है. तो व्हाट्स योर एडवाइस फॉर देम कि जो लोग अभी सैलरीड पर्सन भी हैं तो मे बी सब कुछ लोगों को सैलरी नहीं मिली है अभी तक और कुछ को मिली भी है तो हाफ सैलरी मिली है. तो व्हाट्स योर एडवाइस फॉर देम कि वो इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करें और अपने लिए फायदेमंद बनाएं, इस टाइम को किस तरह से वो कर सकते हैं. I think जो सैलरीड भी हैं या जो एम्प्लॉयड भी हैं जो नहीं एम्प्लॉयड भी हैं उन सब के लिए एक ही एडवाइस होगी टू इंक्रीज देयर स्किल सेट बेसिकली. जितने ज्यादा स्किल होंगे उतना ज्यादा इस डिफिकल्ट टाइम के अंदर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं. So that's exactly what I am doing right now. I am building upon my skills. मैं SEO पे course ले रहा हूँ. So just to be on top of the industry, just to be on top of my field, अपने skill set increase कर रहा हूँ. That's what I recommend everyone else as well. अगर आप unemployed हैं तो अपने skill set भी increase करें so that you can get the next job क्योंकि उसमें competition बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा लोग unemployed हो रहे हैं. और इसके अलावा भी अगर आप unemployed है तो with that additional skill set you can earn something for yourself. You can do freelance thing, you can do freelance work. Okay. So yeah, अपने skill set increase करने की जरूरत है और and one thing I recommend to everyone is that हमेशा देखते रहें what market is demanding right now, उस basis पे skill set increase करें. Always go on LinkedIn, पढ़ते रहें कि what job opportunities are out there, what the companies are requiring right now, what tools are important these days. उसके basis पे अपने skill set develop करें basically. Yes, Aris, you're right. और I think इसमें हमें ये भी है कि they should be, I know बहुत डिफिकल्ट टाइम है सबके लिए जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, उनको थोड़ा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, सही है, और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं ज़रा. और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि नए स्किल्स वगैरह सीखें जिसमें वो माइंड उनका मसरूफ होगा
एक चीज को सीखने के लिए। आई थिंक नेगेटिविटी से थोड़ा दूर हो जाएंगे वो, और कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव चीजें सीखें और नए स्किल्स उनके अंदर आए। हारिस, एक और चीज जो एक मेन है हमारे पास, वो स्टूडेंट्स हैं, सही है, जो अभी लड़के आई थिंक 9 मैट्रिक इंटर में है, पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं। सो व्हाट्स योर एडवाइस फॉर देम कि वो इस टाइम पे क्या आप करें? I think the most important thing in their life is their education. उसको तो बिल्कुल मतलब कि उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उसके साथ साथ जिस तरह बेसिकली हमें स्किल से डेवलप करने की ज़रूरत है, उन स्टूडेंट को भी बेसिकली अपनी स्किल से डेवलप करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे उनको अपनी फ्यूचर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी what's their next step would be, what college they are going to be in, what university they should apply for, what subject they should be studying in the future. I think that are the core things they need to be focusing on. Okay, Haris, what साथ में yeah, साथ में if you have time, so utilize them in going for the freelance thing. फ्रीलांस की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काम कर, बहुत सारा फ्रीलांसर्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम है, so explore that option as well. ओके, आई थिंक बिल्कुल सही बात आपने बोली है। और एक और चीज़ है जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि यार आई थिंक के गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को, कि एक उनको पता चले कि अभी के दौर में और आने वाले 5 साल जो हैं वो क्या चीज़ रहेगी। पास्ट जो हो गया वो हो गया, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत जल्दी इंडस्ट्री चेंज हुई है। एक टाइम आया था टेक्सटाइल का बूम था, टेक्सटाइल की तरफ कोर्सेज सब कर रहे हैं, इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बूम कर रही थी, और अब देखो बिल्कुल एक खत्म हो गई। कुछ अर्से बाद ही हमने देखा कि यार वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई। और इसी तरह से डिफरेंट चीजें आती रहती हैं, और उनको आई थिंक कोई गाइडेंस प्रॉपर मिलनी चाहिए कि इन फ्यूचर वो उनका इंटरेस्ट किस तरफ है और वो किस फील्ड में जाएं और जाके उसकी एक्सपर्टीज अपने अंदर हासिल करें। सही, आई थिंक आगे जो आने वाला चीज मुझे नजर आ रही है वो है एक्सपर्ट्स का दौर ना, कि एक चीज के आप एक्सपर्ट हो जाओ। आई डोंट थिंक कि मल्टीटास्किंग अब वो इतना ज्यादा वो रहा है। अब लोग आई थिंक एक्सपर्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं कि यार अगर मुझे अपने एड्स चलाने हैं तो पेड मार्केटिंग का एक्सपर्ट कौन है, सही है। मुझे कुछ और चीज अपनी चलानी, फेसबुक एड्स हैं, तो उसके लिए कौन एक्सपर्ट बनता है जो वो चीज हैंडल कर रहा होता है, तो मैं उसे अप्रोच करूंगा और उसी के पास जाऊंगा। तो आई थिंक अब स्टूडेंट्स को फोकस करें और अपना टाइम लगाएं कि एक्सपर्टीज हासिल करें और एक चीज में चैंपियन बन जाए। And adding to your point, I think एक बहुत ज़्यादा जरूरत ये भी है कि स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट हो, as you said, और एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट हो, ताकि उनको बेसिकली वो एडवाइस कर सकें, उनकी एडवाइस ले सकें, उनको मार्केट का भी थोड़ा सा अंदाज हो, उनको ये पता हो कि what field to choose, what occupation to choose, what college to choose. So I think मुझे मतलब कि मुझे आज तक किसी स्टूडेंट ने अप्रोच नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया मुझसे, मुझे लिंक्डइन में किसी ने नहीं पूछा कि फॉर द एडवाइस। आई थिंक बहुत ज़्यादा जरूरत है लिंक्डइन का, मतलब यूटिलाइजमेंट को प्रॉपर्ली बहुत जरूरत है। आई थिंक ये फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए कि वो आपको कनेक्ट करें लिंक्डइन के थ्रू और आपसे एडवाइस लें फॉर कि श्योर, आगे फॉर श्योर, क्या करना बिल्कुल। चाहिए और फील्ड में उनके लिए क्या चीज़ें। आई वुड लव टू एक्चुअली, चलो ग्रेट, बिल्कुल। दैट्स रियली ग्रेट। ओके हरीश, इट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई जो आई थिंक यूजर्स को जो हमारे पेज पे हैं उनको काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। और मे बी कुछ सवालात हों तो वो बिल्कुल पूछेंगे हमसे कमेंट्स में, तो उसका भी आप इंशाल्लाह रिप्लाई उन्हें देंगे। और मैं चाहूँगा कि आप 3 इंडस्ट्री एक्सपर्ट बता दें हमें, जो हम अपने नए जो आने वाली वेबिनार सीरीज है उसके अंदर हम उन्हें इनवाइट करें। आप किसी को रेफर करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल रेफर करूंगा। ऑफलाइन बेसिकली आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा, आई नीड टू आस्क देम फर्स्ट, सो मैं एक बार उनसे कंफर्म कर लूं, बिकॉज़ ऑब्वियसली पीपल विल बी विलिंग टू जॉइन यू गाइस ऑन द लाइव सेशन। तो बिल्कुल सुनिए, जितने भी रेफरेंसेस है मैं इंशाल्लाह उनको कांटेक्ट करता हूं, एंड लाइक गिव मी सम टाइम, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। Okay, Haris, thank you for your time and stay safe. Okay, take care. Bye. थैंक यू, सेम टू यू, बाय बाय।